from CCAI. Canadian Community Arts Initiative is a non-for-profit organization, and we present TD Mosaic Festival, Rock the Coliseum, and NISAF, the film festival. This particular program we are putting together to celebrate the 15th anniversary of TD Mosaic Festival. It's been going on since 2006 in the city of Mississauga. And this project is produced and presented by CCAI. It is generously sponsored by TD Mosaic and TD Financial Group, and generously sponsored by Laziz Shawarma, Greenwich Health Products. We are generously supported by City of Mississauga, Canada Council, Ontario Arts Council, Province of Ontario, Factor, and Canadian Heritage. We recognize that we live on the lands of native Anishinaabe, people of New Credit, and Mississaugas. This project is a celebration of our 15th anniversary, and every Monday and Thursday you will get an opportunity to enjoy a talk with one of our headliners for the last 14 years. So this is my unique opportunity and my distinct pleasure to introduce to you today a wonderful human being. She is a marvelous actress known world over for her talented portrayal of whether it's in comedy or in serious drama. She's also a drama writer, a very accomplished singer, and a person who has a great insight into not only the artistic channels, but also the humanitarian channels of Pakistan. Ladies and gentlemen, let's meet Bushra Ansari. Bushra, thank you so much for being a part of our project. We are so happy to have you here. And I've been getting so many calls and so many messages from people who are so excited to have you come and talk at this forum. Thank you so much, Asma. You've been so kind introducing me with so many great words. I'm so grateful to you, and you're always dear to me. And I'm so happy to be part of your festival, Mosaic Festivals. A few years ago, I attended that big gala, and it was so enjoyable. And congratulations for your anniversary. And this is something new you're going to try, and I think this is a great idea to be connected with the people who are associated with you, or who are watching you, who are actually waiting for your festival to be held in August, maybe August some date. Yeah, इस दफा हम अगस्त में नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास सिटी ने डिसाइड किया है कि कोविड-19 के तहत की वजह से अभी भी ये महफूज नहीं है कि हम आउटडोर फेस्टिवल करें. चुनाची फेस्टिवल को अब हमने अगले साल के लिए डिफर कर दिया है. लेकिन ये जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रोजेक्ट, ये एक्चुअली हम अपनी 15वीं जो हमारी एनिवर्सरी है उसके सिलसिले में कर रहे हैं, जो कि हम करना चाहते थे, लेकिन फिर चीजें कुछ इस तरह हुई बिकॉज ऑफ कोविड-19 और इस तरह के हालात क्रिएट हो गए कि जिनकी वजह से हमें ये प्रोजेक्ट अपना ऑनलाइन करना पड़ा. तो लेकिन इट्स अ प्लेजर कि हमें आप जैसे आर्टिस्ट, जेनरस आर्टिस्ट हैं जो हमें अपना टाइम देते हैं और हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम अपनी ऑडियंस से आप लोगों को मिलवा सकें. तो बुशरा जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपका टाइम अभी टोरंटो में कैसा गुजर रहा है? Mixed feelings हैं टोरंटो में. If I tell you that I am feeling safe, मगर वो भी एक ऐसी फीलिंग है कि आप ये नहीं कह सकते कि मैं ठीक हूँ मगर पीछे क्या हो रहा है उसकी बराबर में फिक्र है, बल्कि उसकी कहीं ज्यादा फिक्र है. एंड इतना ज्यादा स्प्रेड होने से जो दिन ब दिन हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, वो दैट्स एक्चुअली अफेक्टिंग आवर साइकी. And I'm not only worried for myself, my family, my daughters. I'm worried for the future of the kids of this whole thing. कि बच्चों की आगे चल के क्या नफ्सियात होगी, बच्चे इसको कैसे कोप करेंगे, उनकी एजुकेशन का क्या होगा, उनकी जो ह्यूमन लेवल पे उनकी एक इंटरकनेक्टेड एक टच होता है इंसानों का, वो जब हम उनको स्टॉप करेंगे तो फिर बड़ी बहुत सारी चीजें हैं. बट टोरंटो इज ओके. आई एम फीलिंग मच बेटर हियर. उस तरह से तो मैं ठीक हूँ. मैं अपने
घर में हूँ, मैं सेफ हूँ। बेटी आती है कभी मेहमान मिलने के लिए 10-12 दिन में, बस इसलिए कि मैं सिर्फ एक वो है जिसको मैं मिलती हूँ। आपसे भी मैं नहीं मिली हूँ, किसी से भी नहीं मिली हूँ। आई नो, तो यहाँ पे आई तो नो। रख सकते हैं, बट आई मीन इट्स गुड टू बी हियर इन टोरंटो। इट्स अ गुड फीलिंग। बिल्कुल। अब हम एक और चीज जिसको कि हम बहुत जरूरी है हमें एक्नॉलेज करना, वो ये है कि आजकल जो प्रेजेंट डेज में जो एक पॉलिटिकल मूवमेंट चल रही है अमेरिका के अंदर, खास तौर पे ब्लैक लाइव्स मैटर के हवाले से, जिसमें अफ्रीकी नजाद अमरीकियों को पुलिस के हाथों उनके कत्ल या उनके साथ ज्यादतियां होना और गैर मुनासिब उनके साथ उनकी ट्रीटमेंट उनके साथ होना, बराबरी के हकूक ना मिलना, सेहत, मकान और नौकरी के मौके उनको बराबरी के ना मिलना, जो वो लोग जो पिछले 400 साल से अमेरिका को बनाने में उनका इतना बड़ा हाथ है, उनको इस टाइम के ऊपर जब वो आके उनको ये महसूस होना शुरू हो जाए कि उनको रंग और नस्ल की बुनियाद के ऊपर उनसे इतनी ज्यादती की जा रही है, तो मेरा ख्याल है कि हम सारे के सारे उस चीज के साथ उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि हम सारे उनके हालात और उनकी जो ट्रेजेडी है उसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं। तो ये आई थिंक एक पॉलिटिकली एक बड़ा चार्ज टाइम भी है, और इस वजह से हम सबको ब्लैक लाइव मैटर के साथ साथ अपने आइडियाज को प्रोजेक्ट करना चाहिए और उसको सपोर्ट करना चाहिए इस सारी मुहिम को। तो अब आप पॉलिटिकली आप बिकॉज आप एक आर्टिस्ट हैं और एक बहुत जानी पहचानी आर्टिस्ट हैं, तो आपको कैसा लगता है जब कि आप कभी पॉलिटिकल एरिना के अंदर स्टेप इन करती हैं या कभी व्यूज देती हैं, पॉलिटिकल व्यूज? बिल्कुल देती हूँ, जाहिर है एज अ सेंसिबल ह्यूमन बीइंग सबको इसमें अपना इनपुट देना चाहिए। अब वो इफेक्टिव होता है या नहीं होता, दैट्स समथिंग एल्स। बट हम और आप जैसे महसूस करते हैं जब भी इंसानों के साथ ज्यादती होती है, इन पाकिस्तान जब हम देखते हैं कि हमारी माइनॉरिटीज के साथ जब कहीं ज्यादती होती है, तो हम और आप जो प्रोग्रेसिव थिंकिंग के लोग हैं, हम इससे बहुत अपसेट होते हैं। और मैं तो खास तौर पे आउट ऑफ द वे जाकर, फ्रैंकली स्पीकिंग, माइनॉरिटीज में अगर कोई मेरे जानने वाले होते हैं तो मैं उनको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट ना कर सकूं, तो कम से कम उनको मैं सपोर्ट जरूर करती हूँ ताकि उनको ये फीलिंग ना रहे। लेकिन इसी तरह अब ये महसूस होता है कि देखिए, रंग और नस्ल और शक्ल और कद और ये सब चीजें तो सब अल्लाह के हाथ में है। इतना सिंपल है ये, इट्स सो सिंपल इफ यू जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या है ये। आप भी पैदा हो सकते थे ऐसे किसी भी घर में जहाँ आपका छोटा कद होता, लंबा होता, मोटे होते, छोटे होते, काले होते, गोरे होते, व्हाट्स आई मीन, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आई डोंट नो, ये पिछले कुछ सालों में जो डेवलप हुआ है, रेसिज्म बहुत ज्यादा एग्रीवेट हुआ है बिकॉज ऑफ अ सर्टेन पर्सन, आई डोंट वांट टू नेम हिम। उन्होंने किया है और उन्होंने इसको भड़काया है आग को, जो कहीं थोड़ी बहुत होगी होगी जरूर, लेकिन उसकी वजह से अब लोगों में शेरी आ गई है, पत्ते की हला शेरी जो आ गई है। बहुत अफसोसनाक है और बहुत पेनफुल है, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसका कितना बैकलैश और कितना खौफनाक रिएक्शन आ रहा है। नाउ दे आर फेसिंग अ टेरिबल रिएक्शन। खुद अमेरिका इस वक्त ट्रबल में है। तो ये समझने की जरूरत है और ये समझना पड़ेगा, समझना ही चाहिए। इंसानों के साथ इंसान ऐसे नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी मुल्क में हो। पूरी दुनिया को अगर आप अपने नीचे लगाते हैं और आप पूरी दुनिया को सप्रेस करते हैं, उनके ऊपर अटैक करते हैं, नॉट ओनली अफ्रीकन अमेरिकन, पूरी दुनिया को आपने अगर, तो कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी उसका रिएक्शन तो आएगा। हाँ, तो अनवर मकसूद जो हैं आपके, हम पाकिस्तान के इतने बड़े राइटर, और वो उनका पॉलिटिकल सिचुएशंस के साथ एक बड़ा खूबसूरत सा रिश्ता है, और वो हाँ, और वो उसको ह्यूमर के पर्दे में डाल के तो बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। तो अनवर मकसूद के साथ जो आपका रिलेशनशिप है, जब आपने उनके साथ काम शुरू किया, तो आपको कैसा लगा, और कैसा अनवर मकसूद के साथ कैसा रिलेशनशिप आपका? अनवर साहब की जो कॉमेडी है ना, एक्चुअली मैंने मोस्टली, अगर आप कभी गौर करें तो आंगन टेढ़ा से लेकर लूज टॉक के बीच में जितना भी टाइम गुजरा, तो मोस्टली मैंने अनवर साहब की कॉमेडी की है, बिकॉज वो मुझे सूट करती थी। एक तो वैसे भी मुझे वो एक उसमें फिनिश था और एक सेटायर ओरिएंटेड ह्यूमर था, तो मुझे और मोइन को वो बहुत सूट करता था। तो उसके अलावा मैं कर नहीं सकी। फिर बस वो जहां तक कि मैंने बराते की या साहिबा चौधरी की, उससे बीच में मैंने और कोई किस्म की किसी और की कॉमेडी नहीं की।
सो उनके साथ काम करना एक मुसलसल एजुकेशन है, और उन्होंने बहुत सी चीजें उनके लिखे हुए से हमने सीखी। हमने बहुत से लफ्जों की अदायगी, बहुत से जज्बों की अदायगी, बहुत सी बातों के मीनिंग समझकर उनको डिलीवर करना सीखा। So it was lot of good way of getting educated by so many things. उनके अंदर जो जुमले होते थे, जो जिनके अंदर मायने खेज जुमले होते थे, उसमें बहुत कुछ। शुरू में कई बातें तो मेरी समझ में नहीं आती थी। मैं बहुत शुरू की बात बता रही हूँ, मे बी 80s की। जब मैंने समझना शुरू किया तो मुझे मजा आने लगा, क्योंकि वो एक बहुत ही पक्का वो बना के बहुत सीरियस सी बात कर देते थे। मैं कहती थी ये इन्होंने क्या कहा। एक तो बड़े मजे की बात है, हम तीनों बहनें, मैं और नीलम बाजी और शायद अस्मा, हम उनको पता नहीं मिलने कहाँ गए, मुझे याद नहीं आ रहा, किसी के घर पे वो ठहरे हुए थे लाहौर में। हम वहाँ मिलने गए तो काफी हम गपशप करते रहे। वो क्लासिकल बड़ा सुनते हैं, हम गाने गुने भी गाते रहे, उनके साथ बातें करते रहे। कह लगे वो, हमने कहा वो फलां फिल्म देखी थी, फलां फिल्म देखी थी। कहती है हाँ एक फिल्म बड़ी अच्छी है, तुम लोग भी देखना। हमने कहा कौन सी। कहते रात हो गई है, रात होगी घर जाओ। मैंने कहा ये कौन सी फिल्म है, तो समझ नहीं। मैंने कहा ये तो इतना लंबा नाम। कहते नहीं, इसमें की रात हो गई अब घर जाओ। तो मतलब था कि लेट हो गया, तुम लोग घर जाओ। हमने कहा बड़े आप खराब है, हम आपको मिलने आए और आप हमें कह रहे रात होगी घर जाओ। और वो कह रहे फिल्म बड़ी अच्छी है, तुम देखना जरूर। फिल्मों के नाम हो रहे थे ना। सो दिस वाज हिज स्टाइल ऑफ क्रिएटिविटी। एब्सोल्युटली। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, वो एक गाना था जो आपने और आई थिंक आपकी बहन ने शायद गाया था, झूले पे बैठ के। नहीं, वो हाँ, मैंने और मेरा चन्ना ने गाया था, झूला डालो रे। हुमैरा। वो ओह यस। सुहेल राणा साहब की कॉम्पोजिशन थी, और हाँ, हुमैरा चन्ना ने गाया थे। लॉन्ग टाइम बैक जब सुहेल साहब के कुछ गाने मैंने गाए थे। बड़ी खुशकिस्मती की। मुझे बड़ा पसंद है वो गाना। कुछ दो लाइनें उसकी सुनाइएगा। हाँ अच्छा सुनाती हूँ। हाँ कभी कभी गाती हूँ, मुझे उसका मजा आता है। देखिए मैंने ये बड़े मजे का एक माइक लिया, इसमें बड़ा अच्छा इको आता है, तो मैंने कहा मजा इसमें। मैं कभी कभी यहाँ बैठ के गा रही होती हूँ। अभी बल्कि कुछ साल पहले मैं पीटीवी पे गई थी, तो आई सैंग दैट सॉन्ग विद हुमैरा आफ्टर 30 इयर्स। वाह तो वाह। ने गाया था। अच्छा थोड़ा सा गाती हूँ। झूला डालो रे, झूला डालो रे सखी सावन आयो, झूला डालो रे सखी सावन आयो, रिम झिम मेहा बरसे, रिम झिम मेहा बरसे, मन मेरा झूम झूम गाए, वाह झूला डालो रे, झूला डालो रे सखी सावन आयो, झूला डालो रे। वाह, बहुत खूब, सो ब्यूटीफुल। आपका बहुत बड़ा फैन अरशद खान, हाँ उसने है कि वो आंगन टेढ़ा के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि आंगन टेढ़ा अपने टाइम से बहुत आगे का ड्रामा था। और उसमें जो ना सिर्फ पॉलिटिकल नॉनसेंस थे, जो उसके अंदर बातें थी, वो क्या किस आला मेयार की क्वालिटी का ड्रामा था। तो वो जरा सा उसके बारे में हो जाए कुछ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और फिर मजे की बात है कि छोटा सा वो एक ट्रैक था, मतलब 5 लोग थे कैरेक्टर्स, 5 ही लोग थे। हाँ दुर्दाना, अरशद साहब और हम 3 थे। तो इतना अच्छा उसका एक उसकी टीम थी, और एक बड़ा प्यारा सा माहौल था, जो सारा एक लैंग्वेज, एक बिहेवियर। मैं आई वाज ओनली आई थिंक एट दैट टाइम 27, और मैं 60 साल की माई बनी हुई थी। और मुझे इतना मजा आता था जाके पीछे जूड़ा बनाया, काजल लगाया, व्हाइटनर लगाया, साड़ियां पहनी, और जुमले मजे मजे के होते थे। बड़ा अच्छा लगता था। फिर जब वो खत्म होने लगा, हम सारे इतने रो रहे थे ना। वो एक बड़ी अटैचमेंट हो जाती थी। पीटीवी के जमाने में जब ड्रामा होता था तो हम लोग मुसलसल करते थे 3-4 महीने। छोटा होता था 26 किस्तों का। अभी तो हम 50-50 किस्तों के ड्रामे भी करते हैं। और फिर जाहिर है कि वो 10 दिन इधर दिए, 10 दिन उधर दिए, 20 दिन उधर दिए, तो वो हमारी एक जो एक कनेक्शन एवरी डे की होती वो नहीं बनती। तो जब भी प्लेस खत्म होते थे, खासतौर पे शकील तो इतने रोंदू है ना, वो तो बहुत जल्दी रो पड़ते थे। अब तो बहुत ही रोते हैं, पहले रो पड़ते थे। तो उन्होंने आंसू बहाने शुरू कर दिए। वो जब भी कहीं खत्म होता था, कोई और ड्रामा जिसमें पता चलता, शकील सबसे पहले फुस हो जाते थे। आंगन टेढ़ा में भी ऐसे होता था। बड़ा प्यारा सा एक्सपीरियंस था। फिर सलीम भाई थे, उस वक्त वो जिंदा थे। बड़े मजे की जुमलेबाजी होती थी, हम लोग बड़ा एंजॉय करते थे। इट वाज अ गुड मेमोरी। तो आपको आपको लगता है कि जो आंगन टेढ़ा की जो सेंसिबिलिटीज थी, या उसके अंदर स्पेशली जो एक किरदार जो सलीम नासिर का था, जो कि बड़ा बड़ा जिसका लेयर्ड कैरेक्टर था,
तो वैसे कैरेक्टर्स अब हम क्यों डेवलप नहीं कर रहे? हमारे ड्रामास में लेयर्ड कैरेक्टराइजेशन क्यों नहीं आ रही? एक्चुअली जो पीटीवी की सबसे अच्छी बात थी ना, वो एक ऐसी समझे इंस्टीट्यूशन था वो, जिसमें कि हमें बाउंड्रीज का पता होता था, और हमें वैसे भी उस जमाने के लोगों के बेसिक तरीके जो थे वो एक मुनासिब तहजीब थी सबके पास। यानी जो लोग टेलीविजन पे काम नहीं भी करते थे, उनको पता था कैसे क्रॉस लेग्स करके बैठना है, क्या क्या लैंग्वेज बोलनी है। आपके हमारे घरों में एक बेसिक लेवल की एजुकेशन थी। ये नहीं था कि सिर्फ पीटी। तो उस जमाने के हिसाब से हम लोग एक तहजीब याफ्ता माहौल में काम करते थे, और अगर छोटी मोटी कोई चीज होती भी थी तो हमें पता होता था कि ये यूं बात नहीं कहनी, और ये इस तरह कहनी है, इस लफ्ज को इस तरह अदा करना है, इसको यूं अदा नहीं करना। तो वो चीजें आपको रिफ्लेक्ट करती थी आपके काम में भी, और उस वक्त हमारे उस सारे माहौल के अंदर भी। तो और ऊपर से अकबर साहब का लिखा हुआ तो फिर एक और ही उनकी अपनी एक लैंग्वेज है, जो बड़ी मतलब बहुत ही एक तहजीब याफ्ता लैंग्वेज है। तो उसका एक अपना मजा था। और वो मुझे लगता है कि आजकल के ड्रामों में चूंकि इतना कुछ बिखरा हुआ है, इतने मुख्तलिफ टाइप के काम होते हैं। मैं सबको बुरा नहीं कहती हूँ, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मुझे वो अच्छा नहीं लगता कि आप कहें कि हमारा जमाना अच्छा था तो ये जमाना नहीं। हर जमाने में कुछ ना कुछ अच्छा और बुरा होता है, और हमें हर जमाने के साथ साथ कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। लेकिन अब वो फीलिंग नहीं आ सकती, वो जो फैमिली की फीलिंग थी ना, जो पीटीवी के तकरीबन हर प्ले में होती थी। अब हमें ज्यादा सिलेक्टिव होना पड़ता है देखने के लिए कि क्या देखना है और क्या नहीं देखना। चॉइसेस भी तो आ गई लेकिन आपके, इतनी चॉइसेस भी नहीं थी ना। लेकिन एक बात है कि आप वो आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान की, जिन्होंने पाकिस्तान के बाहर भी अपना उतना ही बड़ा मुकाम बनाया जितना पाकिस्तान में। आपके फैंस है हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और हमारे बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे एक डायरेक्टर है, हमारे बड़े पसंदीदा टीम के पार्टनर हैं। वो आपको बहुत पसंद करते हैं, और उनकी आपके बारे में जान पहचान उनकी बड़ी पुरानी है, जो कि आज मुझे पता चला अभी थोड़ी देर पहले। तो मैं इनवाइट करूंगी हमारे डायरेक्टर बोर्ड अजय गुप्ता साहब को, कि अजय गुप्ता जी आके थोड़ी सी गपशप बुशरा अंसारी के साथ करें। गुप्ता जी, जी नमस्कार बुशरा जी। जी नमस्कार। आपसे बात हो रही है, फेस टू फेस हो रही है, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और आज हुआ ये कि जब हम इस प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे थे, मैंने अपने फादर से बात की। वो दिल्ली में रहते हैं, आजकल मेरे पास हैं। मैंने कहा मेरी मुलाकात है आज उनसे, फेस टाइम पे होने वाली। बोले वो बुशरा अंसारी, अच्छा वो जो आंगन टेढ़ा में वो नौकर से लड़ती थी। पहले तो मुझे टाइम लगा समझा ये मुझे बता रहे हैं क्या करें। कहले जब तुम ऊपर छत पे जाके एंटीना घुमाया करते थे पाकिस्तान की तरफ से, तो वो आपके बहुत बड़े फैन हैं, और अभी इसको वो फेसबुक पे देख रहे हैं लाइव। तो जी बिल्कुल बिल्कुल। अब आपके फिर उनके बात होने के बाद मैंने देखा बाकी ड्रामे, उनसे बात की। बोले अब की बार जाओगे तो मैं तुम्हें उसकी वीडियो सीडी दूंगा, वीडियो या सीडी जो भी उनके पास होगी जरूर देंगे, मैं देखूंगा। आपसे एक बड़ा अजीब सा सवाल है, आप कहेंगे ये कैसे टेक्निकल टाइप का हो गया। उस वक्त जो आपके प्रोग्राम होते थे, जो टीवी शोज होते थे, वो लगभग एक टेक में रिकॉर्ड करते थे आप लोग, या मिनिमम रीटेक्स होते हैं। और आजकल जो ये वेब सीरीज आ रही हैं, ये तो सेकंड सेकंड कट में आती हैं। तो आप वो आपने आपने कहा था अपने जमाने की बात नहीं करेंगे, तो आप उसको कैसे महसूस करती हैं? वो बेहतर लगता था कि आप फ्लो में निकल जाते थे, या ये लोग जो फायदा उठा रहे हैं? बिल्कुल, ये वो बात है आपने जो मेरे दिल में हमेशा होती है, और मैं कभी कभी सिंगल कैमरा से बड़ी तंग आती हूँ, क्योंकि आप देखें तो तीन टेक्निकल बातें मुझे आपको उसमें डालना नहीं चाहिए, बट ऐसे मोटी मोटी बात बता रही हूँ। हम एक सीन जब क्रिएट करते हैं आजकल, हम रिहर्स करते हैं अपने एक्टर के साथ, दो तीन, अच्छा यूं है, यूं मूव्स बनाते हैं, यहाँ से यहाँ से, या आप बैठ गए फिर आप उठ गए, जो भी हमारी मूव्स होती है एक सर्टेन सीन के बारे में। फिर क्या होता है, हमारा एक मास्टर टेक होता है, इसमें हम वो सारा कुछ आपस में मूव करते हैं, से आया वो उधर से गया, उसने उठ के कहा कि कहाँ जा रहे हो, अच्छा ये हो गया। फिर हम आते हैं मिड शॉट पे, फिर हम आते हैं सिंगल्स पे, फिर हम ओवर द शोल्डर, हम 5-5 दफा एक सीन को मुख्तलिफ तरीकों से करते हैं। तो सारे जज्बात मर जाते हैं। ये सारी दुनिया में होता है, सिंगल कैमरा एवरीवेयर, इंडिया में या हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, सब तरफ। मगर मैं ये कहती हूँ हाय, कभी कभी तो वो कितना प्यारा जमाना था। हमारे पास पीटीवी के एक बड़े अच्छे प्रॉपर सराउंडेड होते थे स्टूडियोज, सेंट्रली एयर कंडीशन, और हमारे पास 3 कैमराज होते थे। बीबीसी के स्टाइल में हमारा पीटीवी बनाया गया था। बीबीसी के लोग आए थे, उन्होंने पूरे हमारे स्टूडियोज, हमारे वार्डरोब्स, एक प्रॉपर फॉर्मेट था जैसे बीबीसी में होता है। 3 कैमरे होते थे। हम एक सीन शुरू करते थे, हर्स करते थे,
और मैं कभी कभी कहती भी हूँ कि जब हम इमोशनल जगह पे आते थे तो हमारी अपनी ग्लेयर आ जाती थी, क्योंकि हम उसको पहनते थे। एक दफा हम कहते थे ड्राई रिहर्सल, फिर हम कहते थे कैमरा रिहर्सल, फिर हम करते थे टेक। वो हम पूरा बिल्ड करते थे, और एक कैमरा मुझे कट कर रहा था, एक उनकी फीलिंग ले रहा था, एक उनकी, और एक मूव कर रहा था, तो 3 कैमरे एट वन टाइम। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो, कि हम एक सीन को फील कर रहे हैं, फिर उसको परफॉर्म कर रहे हैं। आखिर में मेरे आंखों में आंसू आया और वो टपक गया। 1 या 2 दफा ऐसे हुआ जी। लेकिन अब क्या होता है, जब 6 दफा आप करेंगे तो फिर वो ग्लिसरीन डालनी पड़ती है, मिक्स डालनी पड़ती है। और मुझे मजे की बात, मैं किसी को कहती कि पीटीवी के जो डायरेक्टर्स थे ना, वो बहुत बुरा समझते थे, मतलब उस एक्टर को, खासतौर पे मेरे एक्स हस्बैंड जो बड़े अच्छे डायरेक्टर थे, वो बड़े उससे कहते थे क्या ग्लिसरीन वाला एक्टर है, मतलब ये जो फील नहीं कर सकता वो क्या एक्टर है, लाओ भाई लाओ इनको ग्लिसरीन दो, ये ग्लिसरीन के एक्टर है। अरे 2 मिनट में जलील कर देते थे। तो मेरे अंदर झिझक है, मेरे अंदर एक है कि क्या मतलब, मैं हूँ, आई हैव टू परफॉर्म, मुझे अपनी चिन से लेके अपने फोरहेड तक परफॉर्म करना है, उसको फील करना है, और मेरी आंख में वो आंसू बन के आएगा। और ग्लेयर चाहिए कि आंसू चाहिए, थोड़ा चाहिए कि ज्यादा चाहिए जी, फील कर। तभी तो लोग याद रखते हैं आपको। ना मैं किसी एकेडमी में गई हूँ, ना कभी किसी स्कूल में गई हूँ। तो ये हमारे उस वक्त में पीटीवी के डायरेक्टर्स जो थे, वो जी। एक आपको बिल्कुल कंडम कर देते थे अगर आपने कहा कि जरा ग्लिसरीन दे दे जरा। ऐसे होता था जैसे पता नहीं क्या मांग लिया। वो माहौल बड़ा और तरह का था, लेकिन अब का तकाजा ये है। आपका फर्क। अच्छा, इसको लेके चलें तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान में बॉलीवुड फिल्में ज्यादा पॉपुलर हैं और इंडिया में पाकिस्तानी ड्रामे ज्यादा पॉपुलर हैं। तो ये जो एक अलग ग्रुप है, ये ऐसा क्यों है? मतलब पाकिस्तानी फिल्में नहीं आ पा रही इधर हम इंडिया की तरफ, और इधर के ड्रामा उधर नहीं जा पा रहे? जी जी, वही बात है कि एक्चुअली आप सबको चेंज अच्छा लगता है ना। आप लोगों के यहाँ जो फिल्म है वो लार्जर देन लाइफ है, जी। लेकिन वो रियलिस्टिक नहीं है उस तरह से। जाहिर है ग्लैमर है उसमें, हर कोई देखना चाहता है, हमें मजा आता है, हमें खुद बड़ी जी। पसंद है। हम क्या पसंद करते थे इंडिया में, सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल, वो फिल्में देखते थे हम। मैं अभी भी रविंद्र नाथ टैगोर की वो फिल्में देखती हूँ। मुझे मुझे विशाल भारद्वाज पसंद है। वो हालांकि कमर्शियल फिल्म भी करते थे, मगर उनकी फिल्में कुछ अलग होता है। गुलजार साहब की फिल्में थी, तो हमको वो पसंद आती, क्योंकि हमारा ये स्कूल है, हमारा ये स्कूल है। लेकिन मैंने सुना कि वहां पूना में एकेडमी में उस जमाने में कहते थे कि पीटीवी के ड्रामों से हम अपने लोगों को ट्रेन करते हैं। हमारा ड्रामा जो था वो लिटरेचर से आया था, लिटरेचर से जो लोग रिलेटेड थे वो लिखते थे। हमारे पास तो कोई ट्रेनिंग नहीं थी, ना हमारे पास कोई एकेडमी थी। आपके तो फिर भी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन हमारा चूंकि वो लिटरेचर ओरिएंटेड था, उसमें वजन ज्यादा था और वो रियलिस्टिक था। हमने आज से पता नहीं 50 साल पहले जब पीटीवी था, तो हमने मंटो के ड्रामे उस वक्त किए थे। इफ यू रिमेम्बर आसमा, कराची से अब तो रामा होता था उस जमाने में। जब अब तो मंटो को सब जानते हैं, या उनको जैसे भी इंडिया में भी पाकिस्तान में भी, तो उससे जो लोग रियलिज्म देखना चाहते हैं, रियलिस्टिकली ड्रामा देखना चाहते हैं या फिल्म, तो वो उनको पीटीवी का ड्रामा अट्रैक्ट करता है, मतलब पाकिस्तान टेलीविजन का। अभी भी हमारा कमर्शियल ड्रामा होने के बावजूद हमारे कंटेंट में वजन है। आपकी सास भी कभी बहू, वो 10, 15, 20, 25 साल चलती रहती है, वही खड़ा होता है ड्रामा। हाँ, वो तो बस मेकअप में रह जाती है माम। हाँ, आपका सोप से ना भाई, आप इतना हैवी ज्वेलरी पहन के, ये सब पहन के, एक औरत जो है वो लौकी काट रही है और किचन में खाना पका रही है। मैं तो ऐसे जूड़ा कस के साड़ी पहन के आंगन टेढ़ा में खड़ी थी, मैंने मेकअप भी नहीं किया हुआ था। जी बिल्कुल, मैंने देखे वो सीन। एक दूसरे से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो है, लेकिन हम चुन लेते किसको क्या देखना। अच्छा, आपने जो किचन की बात करी, तो मैं किचन पे आता हूँ। अभी जो आपका बहुत लेटेस्ट गाना है हम साया हम जाया, जो आपने इंडिया पाकिस्तान पे, वो आपने पूरा गाना किचन में ही फिल्मा दिया। तो एक तो उसकी कुछ 2 लाइनें मुझे पता, अकेले अपने पोर्शन को तो आप गा ही सकते हैं, और एक और सवाल कि आपने उसमें लेडीज को लिया और लेडीज को सिर्फ किचन तक बांध दिया। एक्चुअली मेरी थोड़ी सी उसमें मतलब नहीं, उसका जो एक थी मेरा, तो मेरी बहन नीलम ने लिखा, नीलम अहमद बशीर, जो बड़ी जानी मानी यहाँ पे हमारी बहन जो है, अफसाना निगार भी है, उनकी नॉवेल्स भी हैं, फिर नज़में भी कहती हैं, पंजाबी भी। तो बड़ी पॉलिटिकली बड़ी अवेयर है और बहुत सी चीजें ऐसी कहती है जो सेटायर और पॉलिटिक्स से भरी हुई होती है। तो उन्होंने ये एक थॉट लिया था, इंडिया पाकिस्तान की एक वॉल के अंदर इधर इंडियन औरत है और इधर पाकिस्तानी, उनके तो वही मसाइल हैं, उनकी दोस्ती भी है, वो ऊपर से खाना भी एक्सचेंज करना चाहती है, पर वो शीशों की वो जो साहब आपने देखा ही होगा, कांच जो चुभे हुए हैं उसमें, तो मतलब दिल मिले हुए हैं, लेकिन ये बाउंड्रीज हैं या जो पॉलिसीज हैं या मसाइल हैं या बच्चे भूखे हैं या एटम बॉम्ब के मसाइल हैं। तो उसको बड़ा एंटरटेनिंग अंदाज में उन्होंने इसको लिखा था। तो मैंने और छोटी ने सोचा कि इसको थिएटर करे कि क्या करें, हमारे पास टाइम नहीं होता, बहुत बिजी होते हैं, तो थिएटर में लोगों को फिर इतना बुक करना भी मुश्किल। हमने कहा चलो एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं। सो वो था ही किचन की 2 औरतों का, दोनों खाना पका रही है, आज की पका लिए थे, तू की पका लिए, तो वो था।
उस वजह से हमने उसको किचन में किया और वो जाहिर है कि क्लिक भी हुआ। और वो जब खत्म होता है, जब वो चुन्नियां बदलती हैं, तो वो बिल्कुल एकदम दिल पे यहाँ लगता है, मीन्स हाँ आप उसको फील कर सकते हैं एक दूसरे को। बिल्कुल उसी बिल्कुल। की कुछ लाइनें आपसे दरखास्त कर सकता हूँ। बल्कि मेरे ना इस पे रिंगटोन पे लगा हुआ है ये गवांडने गवांड, जब बजता सब कहती हाय फोन नहीं उठाना है, पूरा सुनने दो, इतना मजे का है ना उसका वो। गवांडने सोनिए गवांडने, गल सुन कान ला के गल सुन, गल की ये दसनी बोल कुछ हसनी, क्यों कल पानी गवांडी जनानी, कहंदे नहीं कोई रौला है, कालजा भी डोला है, हासा है मखौला है, सियासियां दा टोला है, छड़नी होर गल कटनी, कंध पार सोचनी है तेरा कैसा कार्य, मैं भी यही सोचनी है तेरा कैसा कार्य, इक्को जे वेड़े ते इक्को ही आसमान, लगदा है इंज साडा इहो ही जहान है। टीवी वाले कहंदे ने कि तू मेरी वैरी, कि मैं भी यही सुना है कि तू बड़ी जहरी, गवांडने आज की पका लिए, साग पका लिए कि दाल चढ़ा लिए, जो भी कुछ पक गया है कंध तो बटा लिए। वाह, बहुत खूब, थैंक यू। और आप शाहजेब इज अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स, उनका मैसेज आ रहा है। समिता कास्ता केसारकर आपको बता रही हैं कि वो आपकी, शी लव्स योर सेंस ऑफ ह्यूमर। there's so many beautiful messages coming. Thank you so much to everybody who's there watching it. हम लोगों को ये बड़ी हमारी खुशकिस्मती है कि बुशरा अंसारी के लेवल की आर्टिस्ट हमारे साथ बैठी हुई हैं, जो कि ना सिर्फ पूरी गुफ्तगू को समझ भी बहुत अच्छे तरीके से, उसको स्टीयर भी बहुत अच्छा कर लेती हैं। तो बुशरा, हम लोग थोड़ा सा एंड पे आ रहे हैं अपनी टॉक के, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मोज़ेक ट्विन फेस्टिवल में आपका एक्सपीरियंस जो था, मुझे अच्छे तरीके से याद है बुशरा इतनी बीमार थी, इनको इतना सख्त बुखार चढ़ा हुआ था। ये वो साल का ब्रोशर है जिसपे बुशरा अंसारी वाज है, और इतनी तबीयत खराब थी, लेकिन उसके बावजूद कावे पी पी के और दवाइयां खा खा के बुशरा स्टेज के ऊपर आई, और इतनी हसीन लग रही थी उस गुलाबी लाचे कुर्ते में। इट वाज सच अ ब्यूटीफुल साइट, और ऑडियंस जस्ट वेंट क्रेजी। हम वो थोड़ा सा पार्ट जो है, जब हम फाइनल एडिट करेंगे इस प्रोग्राम का, तो हम उसके अंदर जरूर डालेंगे। लेकिन अभी एक तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत, दूसरा कि थोड़ी सी लाइन है वो जो आप एक गाना आपने गाया था उस ड्रामे के अंदर, जो मुझे बड़ा ही पसंद आया, उडारी में वो बड़ा ही खूबसूरत। हो व्हाट अ फैबुलस प्ले। और अगर आप लोगों ने ऑडियंस नहीं देखा वो, तो प्लीज जरूर देखिएगा। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है इस नौयत का ड्रामा, अगर इस तरह के लेवल के ड्रामा बनने शुरू हो जाएं, तो वो पाकिस्तान का ड्रामा हम में से कोई नेटफ्लिक्स और नहीं देखेगा। इट इज बीच में देखिए काम भी होते हैं कभी कभी, जाहिर है काम तो मास्टरपीस नहीं हो सकता, कोई काम ऐसा होता है जो आपको कुछ आपको हॉन्ट करता है और आपको याद रहता है। अच्छा, तो आपको उडारी का वो कुकड़ा धमी दिया सुनना था? ओ कुकड़ा धमी दिया क्यों वेले दिती यही बांग माया, टोर बैठी ते बेकू पिछों लगार मान, ओ कुकड़ा धमी दिया क्यों वेले दिती यही बांग माया, तोड़ बैठी ते बेकू पिछों लगार मान, असाए ते ढोला दूर, असाए ते ढोला दूर, साडा दिल डाडा मजबूर, कुकड़ा धमी दिया क्यों वेले दिती यही बांग माया, टोर बैठी ते मेकू पिछों लगार मां। उसे तो इतना बुखार था मुझे, मेरी हालत। थैंक यू सो मच, सो ब्यूटीफुल। बहुत बहुत शुक्रिया बुशरा आपका, अजय आपका, for being a part of it, and Bushra ji, once again, you are such a generous artist, and we look forward कि इंशाल्लाह जल्द हालात ठीक होंगे, कोविड-19 की वैक्सीनेशन मिल जाएगी हमें, और दुनिया दोबारा सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाएगी, और हमारे आर्टिस्ट इसी तरह पूरी दुनिया में घूमेंगे और लोगों को ना सिर्फ महसूस करेंगे बल्कि उनको अपनी रूट्स के बारे में आगाह करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, हमारा अगला सेगमेंट मंडे को होगा लाइव, जो कि जिसमें कि हमारे पास कनाडा का
सबसे बड़ा साउथ एशियन बैंड जोश होगा. रूप मगून एंड खुर्रम हुसैन विल बी विद अस. एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आप दोबारा हमारे साथ जुड़ेंगे और आपसे हम मुलाकात करेंगे. सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच बुशरा जी. थैंक यू गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. बाय.